Hello students, today we are going to discuss one practical question from royalty account. In live class, I have already discussed how you will prepare analytical table. But just for revision purpose, again I am explaining this analytical table. Very first, see the question. A coal company limited takes a lease of a mine for a term for 4 years, paying a minimum rent of ₹10,000 per annum. मिनिमम रेंट का 10,000 डिसाइड हुआ है, तो मिनिमम रेंट का कॉलम हमारे पास ये बना हुआ है एंड वी आर पुटिंग 10,000 फॉर एवरी ईयर 4 ईयर्स के लिए. एंड 4 ईयर्स डिटेल्स आर गिवन 12, 13, 13, 14, 14, 15 एंड 15, 16. मिनिमम रेंट 10,000 हर एक साल का एज पर टर्म्स कंडीशन डिसाइडेड है. मर्जिंग इन अ रॉयल्टी ऑफ 50 पैसा पर टन. एज आई एक्सप्लेन अर्लियर कि डेली प्रोडक्शन ईयरली प्रोडक्शन इज 2,000, 12,000 एंड 24,000 एंड 30,000 टन्स. एंड व्हाट इज द रॉयल्टी रेट? 50 पैसा पर टन. तो रॉयल्टी ड्यू या रॉयल्टी विल पे ₹1,000 फॉर फर्स्ट ईयर, 12,000 इंटू 50 पैसा 6,000, 24,000 इंटू 50 पैसा 12,000, 30,000 इंटू 50 पैसा 15,000. जस्ट हाफ ऑफ योर प्रोडक्शन बिकॉज 50 पैसा पर टन rate is given. Is it clear? After that it is mentioned the lease contains provision to the effect that if the minimum rent paid in any year exceeds the royalty for the year, the amount of the excess may be recouped by the coal company limited out of the royalty payable in the following year only. This line is very important. If there is any short working in any year, then lessee can recover this short working in next year only, not beyond that. इन द फॉलोइंग ईयर ओनली मीन्स अगर 2012-13 की कोई शॉर्ट वर्किंग है तो लेसी कैन रिकवर ओनली इन द ईयर 13-14. अगर 13-14 की कोई शॉर्ट वर्किंग है तो लेसी कैन रिकवर दिस शॉर्ट वर्किंग ओनली इन द ईयर 14-15, नॉट आफ्टर दैट. क्लियर? यानी लेसर उसको सिर्फ 1 ईयर का टाइम दे रहा है फॉर रिकवरिंग द शॉर्ट वर्किंग. कोल इज रेज एज फॉलोज. ये कोल का प्रोडक्शन ईयर वाइज गिवन है जो कि पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. Pass the journal entries necessary to record these transactions in the books of the coal company limited. Here coal company limited is a lessee. Clear? Columns आपको पहले से ही पता है. Very first column is year, then output, और आउटपुट को 50 पैसे से मल्टीप्लाई किया तो यू आर गेटिंग रॉयल्टी अमाउंट. यानी हर साल उसको इतनी रॉयल्टी पे करनी है. आफ्टर दैट मिनिमम रेंट कॉलम, मिनिमम रेंट 10,000 फिक्स एवरी ईयर. नाउ सी वेरी फर्स्ट ईयर minimum rent is 10,000 while royalty is coming 1,000. So there is a short working. You know the formula of short working. Short working is equal to minimum rent minus royalty. So short working is coming 9,000 very first year. In second year again royalty is less than minimum rent. 10,000 minus 6,000, again short working is ₹4,000. Is it clear? Now short working recoup this column. See this column very carefully. पहले साल में उसकी 9,000 की शॉर्ट वर्किंग थी. अगर अगले साल उसकी रॉयल्टी ज़्यादा होती, ओनली देन ही कैन रिकवर हिज प्रीवियस ईयर शॉर्ट वर्किंग. बट अनफॉर्चुनेटली सेकेंड ईयर अगेन देर इज अ केस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, तो he will not able to recover this short working of ₹9,000 in second year. Then lessee will put this ₹9,000 as a total loss. Clear? And he will transfer this total loss in second year as unrecouped short working, and this balance will be transferred in profit and loss account. Clear students? In second year again there is a short working of 4,000. He can recover this short working of 4,000 in next year if royalty is more than minimum rent. So you can see third year here royalty figure is coming 12,000 while minimum rent is 10,000. That means here royalty is in excess of ₹2,000 और उसका प्रीवियस ईयर का शॉर्ट वर्किंग कितना था? 4,000. दैट मीन्स ही कैन रिकवर ओनली ₹2,000 और इसके बाद उसको कोई और चांस इस 4,000 को रिकवरी का नहीं मिलेगा. तो आउट ऑफ 4,000 ही हैज़ रिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग ऑफ ₹2,000. तो जो 4,000 का नुकसान होने का चांस दिख रहा था अब वो घट के कितना रह गया? ओनली 2,000. क्लियर? बिकॉज 2,000 ही हैज़ रिकवर्ड. ही विल पे लेस ऑफ ₹2,000 इन थर्ड ईयर. दैट्स वाई अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग in third year will be transferred only ₹2,000, not 4,000. Is it clear? And in last year again royalty is more than short working, so here he has to pay actual royalty because अब पुरानी कोई भी शॉर्ट वर्किंग रिकवरी का उसके पास कोई राइट लेसी के पास नहीं बचा है. आई होप कि आप सबको ये एनालिटिकल टेबल क्लियर होगी. अब हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करेंगे ईयर बाई ईयर. यू आर हैविंग 4 ईयर्स. क्लियर? तो सी वेरी फर्स्ट ईयर वेरी फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड. रॉयल्टी कितनी बन रही थी? अगर आपने एनालिटिकल टेबल देखी हो 1,000 और वेरी फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग इज 9,000
एंड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड को आपने फुल 10,000 से क्रेडिट करा विच इज़ नथिंग बट अ मिनिमम रेंट अमाउंट. क्लियर? आफ्टर दैट यू पेड 10,000, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक रुपीज़ 10,000 एंड 10,000. एंड इन फर्स्ट ईयर नो शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड. क्लियर? और इस फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक ही एक्सपेंस आपके पास अभी आपको दिख रहा है, रॉयल्टी अकाउंट. तो व्हाट यू विल डू एट द एंड ऑफ द ईयर, यू विल ट्रांसफर दिस एक्सपेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो थर्ड एंट्री यू हैव पास्ड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 1,000 टू रॉयल्टी अकाउंट. दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ईयर ट्रांजेक्शन. क्लियर? We have not transfer right now short working account in PL account because still we are hoping that in next year it might be possible कि we can recover our short working. That's why short working we are not closing here. We have closed only royalty account. In second year again you can see by analytical table royalty amount is coming 6,000. Again there is a short working of rupees 4,000. Again you have to pay landlord minimum rent rupees 10,000. That's why we have passed the accounting entry, royalties account debited, short workings account debited to landlord account. Again you are paying 10,000 to landlord, the next entry will be landlord account debited to bank account 10,000 and 10,000. Clear? Now be careful. अब इस क्वेश्चन में सेकेंड ईयर में रॉयल्टी हमारा एक्सपेंस जो कि पीएल में ट्रांसफ़र करना ही करना है, और जो फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग थी 9,000 वो सेकेंड ईयर में बिल्कुल भी रिकवर नहीं हुई. दैट मीन्स दिस 9,000 बिकम्स आवर टोटल लॉस. So now in second year we will transfer both royalty as well as short working in statement of profit and loss account. So see third entry, the statement of profit and loss account debited rupees 15,000 to royalty 6,000 and to short working rupees 9,000. Clear student? तो ये हमने क्या किया, 2 ईयर की अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर ली. इन थर्ड ईयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सी थर्ड ईयर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं. थर्ड ईयर में आपकी जो रॉयल्टी थी वो कितनी आ रही थी, 12,000. ठीक है. सी रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड 12,000. ऑलवेज रिमेंबर इफ मिनिमम रेंट इज मोर तो यू हैव टू पास एंट्री विद मिनिमम रेंट. इफ रॉयल्टी इज मोर तो यू हैव टू पास एंट्री विद रॉयल्टी. तो थर्ड ईयर में रॉयल्टी इज मोर देन योर मिनिमम रेंट, तो यू हैव टू पे टू लैंडलॉर्ड रॉयल्टी अकाउंट नॉट द मिनिमम रेंट. तो रॉयल्टी थर्ड ईयर में कितनी आ रही थी, 12,000. तो लैंडलॉर्ड को हमने अपने बुक्स में कितने से क्रेडिट किया, 12,000. बट इन सेकेंड ईयर वी आर हैविंग शॉर्ट वर्किंग ऑफ रुपीज़ 4,000 एंड इन थर्ड ईयर वी आर हैविंग सरप्लस अमाउंट ऑफ रुपीज़ 2,000. रॉयल्टी अकाउंट मिनिमम रेंट से 2,000 ज़्यादा है, तो लेसी विल नॉट पे दिस 2,000 टू लैंडलॉर्ड. he will set off his previous loss of rupees 4,000 against this rupees 2,000. तो you can see very carefully third entry, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड 12,000. लैंडलॉर्ड को डेबिट तो 12,000 से ही करेंगे, लेकिन उसमें हम शॉर्ट वर्किंग रिकवर कर रहे हैं कितनी, 2,000. एंड फाइनल अमाउंट विच वी हैव टू पे टू द लैंडलॉर्ड ओनली 10,000. तो वी विल क्रेडिट अवर बैंक ओनली विद रुपीज़ 10,000 नॉट 12,000. लैंडलॉर्ड विल डेबिटेड 12,000. short working recover, it's a gain for us. You can say ki we are reducing our losses, that's why we have created here short working account and to bank account rupees 10,000. Clear students? Now what we have to do, we have again transfer short working and royalty in statement of PL account. Short royalty, what is the amount of royalty, 12,000. and what is unrecouped short working, 4,000 में से 2,000 रुपये तो हमने रिकवर कर लिए, but still 2,000 balance left in short working account which is not more no more recoverable in next financial year. So that's why we will put balance amount to short working 2,000 in a statement of profit and loss account. So next entry will be statement of profit and loss account debited 14,000 to royalties account 12,000 to short working account 2,000. This by this we have closed our 3 years account. Now fourth year, in fourth year your royalty amount was coming 15,000. So next entry will be royalty account debited to landlord account 15,000. मिनिमम रेंट 10,000 था, तो मैंने आपको क्या बोला, मिनिमम रेंट या रॉयल्टी में जो भी ज़्यादा अमाउंट होगा उस अमाउंट से लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करेंगे. क्लियर? और अभी कोई शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल का रिकूप का चांस नहीं है, तो अगेन यू विल पे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. सॉरी, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक, इट शुड बी 15,000 नॉट 10,000. क्लियर? तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 15,000. Clear? And finally you will transfer your royalty balance in profit and loss account, the statement of profit and loss account to loss account debited to royalty account rupees 15,000. ठीक है, दिस इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक. लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट यहाँ पे उन्होंने 10,000 से किया है,
जबकि 15,000 से डेबिट होना चाहिए क्योंकि हम लैंडलॉर्ड को 15,000 रुपये पे कर रहे हैं। आई होप कि दिस प्रॉब्लम विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है इस क्वेश्चन में तो वी विल डिस्कस दिस इन लाइव क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।